Please don't forget to like and subscribe and do hit the bell icon. Hello everyone, welcome to Simrush Tutorials. My name is Simran Behel and today we are going to cover a poem from our class 10th English syllabus. The name of this poem is The Tale of Custard the Dragon. It is written by Odin Nash. So let's begin with a brief introduction about this poem. This poem is a humorous ballad that presents a piece of writing in a funny way. Ballad is a type of writing any piece in literature. It is a humorous ballad. By that, he means that there is a story in it and they are trying to present it to us in form of a poem. It is humorous in nature, it is funny, and it is about a girl named Belinda, and in this poem, she has many pets whom she had named. She has named her pets. She has named the black kitten Ink, the grey mouse Blink, the yellow dog Mustard, and the coward dragon as Custard. So she has all these animals and she has named all these animals. And the poet has beautifully described all these characters in the poem. He says that all of them are very brave. In this poem, we will see several stanzas which tell us that all the animals are very brave except for the dragon. But this perception changes when the dragon saves everyone from the attack of pirates on Belinda's house. When there is an attack on Belinda's house, it is the dragon that saves everybody. So let's see how this happens. Let's recite this poem. Let me recite this poem for all of you. The Tale of Custard the Dragon. Belinda lived in a little white house with a little black kitten and a little grey mouse and a little yellow dog and a little red wagon and a Relio Trulio little pet dragon. Now the name of the little black kitten was Ink, and the little grey mouse she called him Blink. And the little yellow dog was sharp as mustard, but the dragon was a coward and she called him Custard. Custard the dragon had big sharp teeth and spikes on top of him and scales underneath. Mouth like a fireplace, chimney for a nose, and Relio Trulio daggers on his toes. Belinda was as brave as a barrel full of beers, and Ink and Blink chased lions down the stairs. Mustard was as brave as a tiger in a rage, but Custard cried for a nice, safe cage. Belinda tickled him. She tickled him unmerciful. Ink, Blink, and Mustard, they rudely called him Percival. They all sat laughing in the little red wagon at the Relio Trulio cowardly dragon. Belinda giggled till she shook the house, and Blink said "Weak," which giggled, which is giggle for a mouse, which is giggling for a mouse. Ink and Mustard rudely asked his age, when Custard cried for a nice, safe cage. Suddenly, they heard a nasty sound, and Mustard growled, and they all looked around. Mouch! Cried Ink, and oof! Cried Belinda, for there was a pilot climbing in the window. Pistol in his hand, pistol in his left hand, pistol in his right, and he held in his teeth a cutlass bright. His beard was black, one leg was wood. It was clear that the pirate meant no good. Belinda paled and she cried, "Help, help!" But Mustard fled with a terrified yelp. Ink trickled down the bottom of the household, and little Mouse blinked strategically mouse hold. But up jumped Custard, snorting like an engine, clashed his tail like irons in a dungeon. With a clatter and a clank and a jangling squirm,
He went at the pirate like a robin at a worm. The pirate gaped at Belinda's dragon and gulped some grog from his pocket flagon. He fired two bullets, but they didn't hit, and Custard gobbled him every bit. Belinda embraced him, Mustard licked him. No one mourned for his pirate victim. Ink and Blink in glee did gyrate around the dragon that ate the pirate. But presently up spoke little dog Mustard. I had have been twice as brave if I hadn't been flustered. And up spoke Ink and up spoke Blink. We had have been three times as brave, we think. And Custard said, I quite agree that everybody is braver than me. Belinda still lives in her little white house with her little black kitten and her little grey mouse, and her little yellow dog and her little red wagon, and her Relio Trulio little pet dragon. Belinda is as brave as a barrel of bears, and Ink and Blink chase lions down the stairs. Custard is as brave as a tiger in a rage, but Custard keeps crying for a nice, safe cage. By Ogden Nash. So, this is a poem. Now, let's start with the stanza wise explanation. Belinda, this is the first stanza. Belinda lived in a little white house with a little black kitten and a little grey mouse, and a little yellow dog, and a little red wagon, and a Relio Trulio little pet dragon. Now, if you think about it, there are two words in the stanzas which we have never heard of: Relio, Trulio. In reality, these two words don't exist. They have been just made to make a rhyme, make them rhyme with each other. So they have been changed a bit. The real words are real and true. So they have been changed. They have been, we have used them in a creative manner. So we have changed the way we are speaking about it. Like we say pani wani, it is similar to that. In the first stanza, the poet says that a little girl named Belinda lives in a small white house. एक छोटी लड़की है, उसका नाम बिलिंडा है, वो एक स्मॉल वाइट हाउस में रहती है. द गर्ल हैज़ मैनी पेट्स एट होम, बहुत सारे पेट्स हैं उसके पास. शी हैज़ अ स्मॉल किटन दैट इज़ ब्लैक इन कलर. उसके पास एक किटन है दैट इज़ ब्लैक. एक छोटा माउस है ग्रे कलर का. एंड अ क्रीचर दैट इज़ रियली एंड ट्रूली अ ड्रैगन. तो यहाँ जो रीलियो ट्रूलियो लिखा है वो एक्चुअल में उसका मतलब है रियली एंड ट्रूली. उसके पास एक ड्रैगन भी है. ऑल्सो देर वॉज अ लिटिल रेड वैगन इन द हाउस. तो वो कहती है कि ऑल्सो उसके पास एक वैगन है जिसके अंदर ये सारे छोटे छोटे जानवर साथ में बैठ सकते हैं हाउस में. In the second stanza, now the name of the little black kitten was Ink, and the little grey mouse she called him Blink. सेकेंड स्टैंडा में पोएट जो है अपने इन पेट्स के नाम बताना शुरू करती है जो बिलिंडा के हाउस में रहते हैं. ही सेज दैट बिलिंडा हैज़ नेम्ड द लिटिल ब्लैक किटन एज इंक. उसने अपनी लिटिल ब्लैक किटन का नाम इंक रखा है. अपने ग्रे माउस का नाम उसने ब्लिंक रखा है. एंड द लिटिल येलो डॉग वॉज शार्प एज मस्टर्ड. उसका जो डॉग है ही वॉज वेरी शार्प. एंड इतना शार्प इन द सेंस कि अगर उसको कोई इंस्ट्रक्शन दी जाए तो it would hear it and it would follow it, and also if you called the name of the dog he will be present there. So she has named him Mustard. She named also because it's yellow in color. She named the dragon Custard. एज यू ऑल नो कस्टर्ड एक स्वीट डिश होती है हमारी. येलो कलर की होती है मोस्टली और इट इज़ वेरी स्वीट. बट यहाँ पर कस्टर्ड नाम उसने इसलिए रखा है ड्रैगन का बिकॉज इट सिंपलाइजेज दैट ही वॉज अ काउडली एनिमल एंड नॉट ब्रेव इनफ लाइक अदर क्रीचर्स एट द हाउस. अकॉर्डिंग टू बिलिंडा एंड द अदर एनिमल्स, कस्टर्ड वॉज अ कावर्ड. कावर्ड माने डरपोक था वो. एंड उसके हिसाब से वो बाकी क्रीचर्स से इंक्लूडिंग बिलिंडा, बाकी पेट एनिमल्स प्लस बिलिंडा को मिला के वो इतना ब्रेव नहीं था. वो डरपोक था. स्टैंजा 3, कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ. अब इस स्टैंजा में शी इज टेलिंग अस इन डिटेल कि हाउ कस्टर्ड लुक्ड.
कस्टर्ड कैसा दिखता है इन द थर्ड स्टैंजा? कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ, उसके बड़े बड़े शार्प टीथ हैं, एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम एंड स्केल्स अंडरनीथ, उसके बॉडी के ऊपर पॉइंटेड पॉइंटेड स्पाइक्स जैसे हैं उसकी अपर बॉडी पे, और लोअर पार्ट पे ऐसा है जैसे स्केल्स हो, स्केल्स होते हैं जैसे हम फिश के ऊपर स्केल्स देखते हैं, उस टाइप के स्केल्स हैं। माउथ लाइक अ फायर प्लेस, चिमनी फॉर अ नोज, उसकी माउथ ऐसी दिखती है जैसे फायर प्लेस होती है, जैसे हम कार्टून्स में देखते हैं जिसके अंदर लोग लकड़ी डाल के आग जलाते हैं ठंडे मौसम में अपने आप को गर्म रखने के लिए, दैट इज़ अ फायर प्लेस। जो कि माउथ लाइक अ फायर प्लेस, चिमनी फॉर अ नोज, चिमनी ऐसी है, नोज उसकी ऐसी है जैसे एक चिमनी होती है, क्योंकि हमने अगर कभी कार्टून्स में ड्रैगन देखे होंगे तो हमेशा उनकी नाक में से धुआं निकलता है, मुंह में से आग निकलती है, तो यहाँ पर हमने ड्रैगन को, एक ड्रैगन के माउथ को फायर प्लेस और ड्रैगन की नोज को चिमनी से रिलेट कंपेयर किया है यहाँ पे। एंड थ्रू विच स्मोक्स कम आउट फ्रॉम द फायर ऑफ हिज माउथ, जब ड्रैगन अपने मुंह से फायर निकलता है तो उसके बाद उसकी नाक में से उसका धुआं निकलता है। द ड्रैगन्स टोज, सो एंड रीलियो ट्रूलियो डैगर्स ऑन हिज टोज, ड्रैगन के टोज जो हैं बड़े पॉइंटेड से होते हैं, इतने पॉइंटेड होते हैं कि ऐसा लगता है कि अगर कोई उसके बीच आ जाए तो वो उसे नाइफ की तरह, एक शार्प नाइफ की तरह काट देंगे। उसकी टोज, उसके पैर इतने शार्प तरह के होते हैं, डैगर्स की तरह, जैसे चाकू होता है वैसा। With stanza 4, Belinda was as brave as a barrel full of bears, and Ink and Blink chased lions down the stairs. Mustard was as brave as a tiger in a rage, but Custard cried for a nice, safe cage. अब इस फोर्थ स्टैंजा में हमारे जो पोएट हैं इस एक्सप्लेनिंग इट टू अस कि इसके जितने भी कैरेक्टर्स हैं कस्टर्ड के अलावा उनका ब्रेव नेचर है, और वो कैसे ब्रेव है उसका उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है बहुत ब्यूटीफुली, इसमें सिमिली का बहुत अच्छा यूज़ किया हुआ है। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट लाइन। बिलिंडा वॉज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बेयर्स, वो कह रहे हैं कि बिलिंडा जो है वो इतनी ज़्यादा ब्रेव है दैट शी इज़ एज ब्रेव एज, सिमिली का बहुत ब्यूटीफुल यूज़, बैरल फुल ऑफ बेयर्स, बैरल फुल ऑफ बेयर्स से उनका यहाँ मतलब है जैसे हम कलेक्टिव नाउन्स का यूज़ करते हैं, अ हर्ड ऑफ शीप, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, वैसे ही यहाँ बैरल फुल ऑफ बेयर्स का इस्तेमाल किया है उन्होंने ब्रेवरी दिखाने के लिए। तो देयर इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल यूज़ एंड ही सेइंग दैट बिलिंडा इज़ एज ब्रेव एज अ ग्रुप ऑफ बेयर्स, के बेयर्स भालू जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं, जितने बहादुर वो होते हैं बिलिंडा भी उतनी ही बहादुर है। इंक एंड ब्लिंक, उसके कैट एंड उसका माउस जो है उनके बारे में ये बताते हैं दैट एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लायंस डाउन द स्टेयर्स, कि इंक एंड ब्लिंक इतने ब्रेव हैं कि इवन लायंस तक उनसे डर के सीढ़ियों से नीचे भाग जाते हैं। मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज, वो कहते हैं कि उनका जो डॉग है मस्टर्ड वो इतना ब्रेव है, एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज, कि जब जितना टाइगर को गुस्सा आता है, और उसकी ब्रेवरी दिखाने का जो तरीका है वो क्या है टाइगर का, कि जब वो गुस्से में आके गुर्राता है, अपनी वो करता है, आवाज़ निकालता है, उसी तरह मस्टर्ड भी अपनी आवाज़ उसी जोश के साथ निकालता है। वो उसकी ब्रेवरी का साइन दिखाने के लिए है कि मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज। अब यहाँ पर कस्टर्ड की बात आती है, बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज, कस्टर्ड के बारे में हमारे पोएट कहते हैं कि हाउएवर कस्टर्ड इज डिस्क्राइब एज ऑपोजिट हिज फिजिकल नेचर, कि हालांकि कस्टर्ड एक ड्रैगन है और ड्रैगन्स आर, अगर हम उसकी फिजिकल नेचर को देखें, उसको देखें तो देखने में दे आर वेरी स्कैरी, दे सीम वेरी समवन हु इज़ वेरी ब्रेव, बट in spite of that physical nature, instead of being brave as a dragon, he has been described as fearful, कि वो कोई ऐसा है जो डरता है, एंड वो हमेशा रोता रहता है कि मुझे एक नाइस सेफ केज दे दो रहने के लिए। थ्रू आउट द पोएम हम देखेंगे दैट ही ओनली आस्क्स फॉर अ नाइस सेफ केज। Stanza 5, Belinda tickled him unmerciful. Ink, Blink, and Mustard, they rudely called him Percival. They all sat laughing in the little red wagon at the end at the Relio Trulio cowardly dragon.
अब इस स्टैंजा में हमारे जो पोएट है वो डिस्क्राइब कर रहे हैं कि कैसे बेलिंडा और बाकी पेट्स जो हैं ड्रैगन के साथ, कस्टर्ड के साथ बिहेव करते हैं. ही सेज दैट बेलिंडा यूज टू टिकल द ड्रैगन, वो गुदगुदी करती है ड्रैगन को बहुत ही हार्श वे में. इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड जो हैं उन्होंने उसका नाम पर्सिवल रख दिया है. वो उसका नाम बिगाड़ते हैं. दे मेक फन ऑफ हिम बाय कॉलिंग हिम पर्सिवल बिकॉज पर्सिवल वॉज अ किंग हु वॉज थॉट टू बी ब्रेव बट ही हैड रन अवे इन द बैटल. पर्सिवल के कैरेक्टर की बात की गई है कि एक स्टोरी जो उनको पता है जिसके अंदर पर्सिवल एक किंग का नाम होता है, बट जब बैटल का टाइम आता है तो वो किंग भाग जाता है. तो उस नाम से वो कस्टर्ड को बुलाते हैं और उसे चिढ़ाते हैं कि तुम तो पर्सिवल हो. दे ऑल लाफ एट द ड्रैगन फॉर सिटिंग इन द लिटिल वैगन. वो सब हंसते हैं उस पर क्योंकि वो हमेशा, जो हमारा ड्रैगन है वो एक वैगन के अंदर, एक छोटी सी गाड़ी सी होती है, उसमें बैठा रहता है. एंड दे ऑलवेज मेक हिम फील दैट ही इज़ अ कावर्ड. वो हमेशा उसे यही फील कराते रहते हैं कि वो एक डरपोक है, एक कावर्ड है. Stanza 6. Belinda giggled till she shook the house, and Blink said, "Weak," which is giggling for a mouse. Ink and Mustard rudely asked his age, when Custard cried for a nice safe cage. जहाँ पर अभी बिलिंडा की बात हो रही थी कि वो हर वक्त उसे गुदगुदाती रहती है, इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड उसे रूडली पर्सिबल कहते हैं. अब वो और डिटेल में बता रहे हैं कि और कैसे उसको परेशान किया जाता है. सो इन द सिक्स स्टैंजा द पोएट सेज दैट बिलिंडा लाफ सो लाउड, वो इतनी लाउडली हंसती है कि उसके हंसने से पूरा घर कप कप आने लगता है, शेक होने लगता है, पता चलता है कि हाँ बिलिंडा हंस रही है. द माउस ऑल्सो लाफ्ड एट द ड्रैगन. अब माउस एक छोटा सा क्रीचर है लेकिन वो भी ड्रैगन पे हंसता है अपनी वियर्ड सी हंसने वाली आवाज़ निकाल के. Ink and Mustard used to ask the dragon's age and make fun of him when he used to cry for a nice safe cage. मतलब इंक एंड मस्टर्ड जो है दे आर एक्टिंग एज अ बुली. ऑल ऑफ दीज फोर कैरेक्टर्स आर एक्टिंग लाइक अ बुली. एक बंदा जो दूसरों को परेशान करे उसको हम बुली कहते हैं. दे आर एक्टिंग लाइक अ बुली एंड वो सब उसका मजाक उड़ाते हैं हर वक्त. जो हमारे इंक एंड मस्टर्ड है वो हर वक्त ड्रैगन से उसकी उम्र पूछते रहते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं जब भी वो है रोता है, क्योंकि इस पोएम के अकॉर्डिंगली ये माना जा रहा है कि ड्रैगन इन सबसे ज़्यादा एज में बड़ा है. तो वो इसी बात का मजाक उड़ाते कि तुम तो एज में हमसे सबसे बड़े हो लेकिन फिर भी तुम डरपोक हो और तुम रोते रहते हो और एक केज मांगते रहते हो, सेफ केज. Stanza 7. Suddenly, they heard a nasty sound, and Mustard growled, and they all looked around. Meouch! Cried Ink, and ooh! Cried Belinda, for there was a pirate climbing in the window. अब यहाँ पे विंडो वर्ड यूज़ करना चाहते थे वो, लेकिन उन्होंने विंडा वर्ड यूज़ किया टू मेक देम राइम विद ईच अदर. बेलिंडा एंड विंडा राइम करने के लिए उन्होंने विंडो को विंडा बोल दिया इस पोएम में. अब यहाँ से हमारी पोएम थोड़ी सी चेंज होती है. यहाँ पर अब बिलिंडा के हाउस पर एक अटैक हो रहा है एंड हाउ थिंग्स चेंज वी विल बी सीइंग इन द नेक्स्ट स्टैंजास दैट फॉलो. सो वाइल ऑल ऑफ देम वर मेकिंग फन ऑफ द ड्रैगन दे हर्ड अ साउंड ऑफ समवन एंटरिंग द हाउस. उन्होंने एकदम से आवाज़ सुनी जब वो उसका मजाक उड़ा रहे थे बेचारे कस्टर्ड का. वो एक आवाज़ आती है कि घर में कोई एंटर हुआ है. जैसे ही वो लोग विंडो की तरफ देखते हैं वो देखते हैं कि एक पायरेट जो है, एक पायरेट जिसे हम समुद्री लुटेरा कहते हैं, ही इज़ ट्राइंग टू क्लाइंब अप द वॉल, कि वो दीवार चढ़ने की कोशिश कर रहा है. द डॉग, जो उनका जो डॉग है मस्टर्ड, वो बाक करता है और जो किटन है वो म्याऊ करती है गुस्से में आके अपना ब्रेवरी दिखाने के लिए. बिलिंडा जो है वो एकदम से क्राई करती है उफ करके, क्योंकि सारे के सारे अब इस समय पायरेट से डर गए हैं. वो सब पायरेट से डर रहे हैं, तो ये जितनी भी आवाज़ें उन्होंने भी क्रिएट करी वो उनका डर दिखाने के लिए कि बेलिंडा क्राइड ऊह, डॉग ने बाक किया, भौंका, किटन जो है मियाऊ कर रही है अपनी आवाज़ से. अब उनमें से कोई भी अपनी ब्रेवरी नहीं दिखा पा रहा है, तो यही चीज़ उन्होंने स्टैंजा में बताई. स्टैंजा 8 में पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ कटलेस ब्राइड. His beard was black and one leg was wood. It was clear that the pirate meant no good. पोएट डिस्क्राइब करते हैं हमारे पायरेट की अपीयरेंस को. वो कहते हैं उसके लेफ्ट हैंड में भी एक गन है और उसके राइट हैंड में भी एक गन है, एंड
ऑल्सो उसके मुंह में उसने अपने दांतों के बीच में एक स्वॉर्ड, एक छोटी सी तलवार सी अटका रखी है। उसके बाद वो बताते हैं कि उसकी ब्लैक बियर्ड है, ब्लैक दाढ़ी है लंबी सी, और एक लेग है, लेकिन दूसरी लेग की जगह वहां पर एक पीस ऑफ वुड लगा हुआ है, दूसरी लेग जो है वो लकड़ी की बनी हुई है। दिस मीन्स दैट दो द पायरेट वॉज अ डिसेबल्ड पर्सन बट स्टिल ही वॉज फ्राइटनिंग, कि इवन दो उसकी एक टांग नहीं है, उसका एक नुकसान ही है, फिर भी वो एक बहुत ही ऐसा कैरेक्टर है इस पोएम में जिससे हमारे बाकी ब्रेव कैरेक्टर्स को डर लग रहा है। मोर ओवर ही इंटेंडेड टू हार्म देम, और पायरेट है तो उन्हें इस बात का भी डर है कि वो उन्हें चोट पहुंचाने, उन्हें हार्म करने आया है। Belinda paled and she cried, "Help, help!" But Mustard fled with a terrified yelp. Ink trickled down to the bottom of the household, and the little mouse blinked strategically mousehold. अब टाइम आता है, पायरेट से डर गए हैं ये लोग, बिलिंडा आवाज़ लगाती है, हेल्प मांग रही है, लेकिन और इतना डर चुकी है कि उसका रंग पीला पड़ चुका है। शी टर्न्ड येलो ड्यू टू फेयर एंड स्टार्टेड क्राइंग फॉर हेल्प। मस्टर्ड जो है, इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग बिलिंडा आउट, वो खुद रोने लग गया है और हेल्प मांगने लग गया है। जो हमारी ब्रेव सी किटन जिसके बारे में यहाँ बात की गई थी, जिसका नाम इंक था, वो घर के सबसे नीचे हिस्से में जाके छुप गई है, एज इफ जैसे उसने पहले ही प्लान किया हुआ था कि अगर ऐसा कभी कुछ हुआ तो मैं वहाँ जाके छुपूंगी। वो बिल्कुल घर के नीचे जाके एक कोने में छुप चुकी है। द माउस इंक, जो हमारा माउस है इंक, जो अपने आप को बड़ा ब्रेव समझता है, हमारे ड्रैगन पे हंसता है, वो भी एक छोटे से माउस होल में चला गया अपनी जान बचाने के लिए। बेलिंडा वहाँ अकेली है, मस्टर्ड वहाँ अकेला है, इंक वहाँ से भाग चुकी है, और लिटिल माउस भी अपने छोटे से माउस होल में जा चुका है। स्टैंजा 10 में बट जम्प्ड, अब यहाँ से हमारी स्टोरी थोड़ी चेंज होती है। बट अप जम्प्ड कस्टर्ड स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, clashed his tail like irons in a dungeon. With a clatter and a clang and a jangling squirm, he went at the parrot like a robin at a worm. When all the other characters that were earlier defined as brave got frightened, जब जितने भी हमारे कैरेक्टर्स जिन्हें हमने ब्रेव कहा है अभी तक, वो सब डर जाते हैं, इस समय पे एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चीज़ हमारा ड्रैगन जो है, हमारा कस्टर्ड जो है, करता है। ही जम्प्ड ऑन टू द पायरेट, वो पायरेट के ऊपर जंप करता है, और उस जंप से ऐसी साउंड आती है, और फिर अपनी अपनी नाक से, वो जैसे हम जब बहुत गुस्से में आ जाते हैं और अपनी नाक फुलाते हैं और उससे एक आवाज़ आती है, वैसी आवाज़ हमारे कस्टर्ड द ड्रैगन के नोज से आ रही है, which shows कि he is very angry. Not only this, he hit his tail on the ground with a great force that it produced a heavy sound of metal being rubbed against each other in an underground prison. जैसे हमने अभी बात करी थी कि ड्रैगन की जो बॉडी है उसके ऊपर ऐसे लंबे लंबे वो बने हुए हैं, क्या कहते हैं, माउंटेड है वो, बहुत ज़्यादा ऊपर से ऐसे लगती है जैसे पहाड़ पहाड़ उसके ऊपर जुबे हों। तो जैसे ही वो एकदम टच होती है ग्राउंड से एकदम फोर्सफुली, जब वो जंप करता है पैरेट पे, तो ऐसी आवाज़ क्रिएट होती है जैसे कहीं पे दो मेटल्स आपस में अटके हों और आवाज़ करें, जेल की सलाखों में जो आवाज़ क्रिएट होती है वैसी। ही अटैक द पायरेट जस्ट लाइक रॉबिन बर्ड दैट अटैक्स द वर्म्स, जैसे एक रॉबिन बर्ड अटैक करता है वर्म्स पे, उनके ऊपर कूद के उन्हें खाने के लिए, वैसे ही हमारा कस्टर्ड जो है वो पायरेट के ऊपर जंप करके कूद जाता है और उसे अटैक कर देता है। स्टैंजा 11, द पायरेट गेप्ड एट बेलिंडाज ड्रैगन, पायरेट एकदम से बेलिंडा के ड्रैगन को देख के एकदम देखता ही रह जाता है, एंड गल्प्ड सम ग्रॉग फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन. He fired 2 bullets but they didn't hit and Custard gobbled him every bit. पायरेट इतना शॉक हो जाता है ड्रैगन के उस रिएक्शन को देख के, एकदम से उस बेचारे पायरेट का मुंह खुल जाता है शॉक में कि ये क्या हो गया। टू गैदर सम स्ट्रेंथ, उसने अपनी जेब में से एक अल्कोहल निकाला, एक कंटेनर में था उसकी पॉकेट में, उसे पिया और उसे लगा कि उससे उसे कुछ कर ही जाएगा। उसने अपनी जेब से वो जो उसके हाथ में जो गन्स थी वो चलाई, लेकिन उन दोनों गन्स की जो बुलेट्स थी वो मिस हो गई, नहीं लगी किसी को। कस्टर्ड ने उसी समय उस ड्रैगन को उठाया और अपने मुंह में डाल के उसे खा गया। कस्टर्ड द ड्रैगन एट एवरी बिट ऑफ दिस फियर्स लुकिंग पायरेट, एक मोमेंट में कस्टर्ड ने उस पूरे पायरेट को अपने मुंह में खा के चबा दिया।
Belinda embraced him, Mustard licked him, no one mourned for his pirate victim. Ink and Blink in glee did gyrate around the dragon that ate the pirate. जब उन्होंने देखा कि पायलट मर गया है, कस्टर्ड द ड्रैगन ने पायलट को मार दिया है, बिलिंडा ने ड्रैगन को हक किया, मस्टर्ड ने उसको लिक करना शुरू किया जैसे डॉग्स करते हैं जब वो किसी से बड़ा प्यार करते हैं, तो हमने देखा है कि डॉग्स उन्हें लिक करते हैं. नो वन वॉज सैड फॉर द डेथ ऑफ द पैरट. उनमें से कोई भी सैड नहीं था पैरट की मौत पे. दे वर ऑल वेरी हैप्पी बिकॉज उनकी जान बच गई थी. बोथ इंक एंड ब्लिंक वर रनिंग अराउंड द ड्रैगन इन हैप्पीनेस. दोनों के दोनों ड्रैगन के अराउंड खुशी में घूम रहे थे, इंक एंड ब्लिंक. सो हेयर द पोएट सेज दैट ऑल द कैरेक्टर्स वर हैप्पी एंड दे आर वर शोइंग their gratitude towards the dragon as he had saved them. वो लोग बहुत खुश थे. They were feeling very thankful. They had this gratitude कि उस ड्रैग के उनके कस्टर्ड द ड्रैगन ने उनकी जान बचाई. Stanza 13. But presently up spoke little dog Mustard. I have been twice as brave if I hadn't been flustered. And up spoke Ink and up spoke Blink. We'd have been 3 times as brave, we think. And Custard said, I quite agree that everyone is braver than me. अब जब सबने कस्टर्ड को थैंक कर लिया, अपना प्यार दिखा दिया ड्रैगन को, अब उनके दिमाग में एक बात आई जो हमने आप एक ह्यूमन नेचर में भी ऑब्जर्व करी है हर किसी के, कि पहले तो वो थैंक कर देंगे अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन उसके बाद दे विल again change their mind and they will also remind us. They were reminded of how they used to make fun of this coward dragon and now they all were praising him. अब वो उसको प्रेज कर रहे थे, उसी को जिसको वो पहले मजाक उड़ाते थे. लेकिन अब एकदम से डॉग को याद आता है कि यार मैं तो इससे ज़्यादा ब्रेव होने का क्लेम करता था, तो अब वो बहाना देने की हमें कोशिश करेगा. और बाकी सारे कैरेक्टर्स भी. So at once the dog said it was just because of some confusion that it was just because of some confusion that he wasn't able to do anything, otherwise he would have been twice as brave as Custard. वो कह रहा है मैं तो तुमसे 2 times और ब्रेव हो जाता अगर मैं थोड़ा सा कन्फ्यूजन के चक्कर में, जो मैं कन्फ्यूजन की वजह से घबरा गया, शायद मैं इतना कन्फ्यूज ना होता तो मैं तुमसे भी ज़्यादा ब्रेव हूँ. तुम तो जानते ही हो, तुमसे 2 times ज़्यादा ब्रेवरी दिखा पाता. Both Ink and Blink also said that they would have been 3 times more braver than Custard. अब एक दूसरे को आउटपास करने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग. बोथ इंक एंड ब्लिंक कहते हैं कि हम भी तुमसे 3 times ज़्यादा ब्रेव होते कस्टर्ड. To this the dragon said that he fully agreed to that and all of them were more powerful and braver than him. तो इस पे हमारे कस्टर्ड जी बोलते हैं कि हाँ मैं तो तुमसे बिल्कुल अग्री करता हूँ कि तुम सब मुझसे ज़्यादा पावरफुल और मुझसे ज़्यादा ब्रेव हो. बिलिंडा स्टिल, अब अगर एक चीज़ हम यहाँ नोट करें तो यहाँ पर कहीं पे भी बिलिंडा ये बात नहीं कह रही है. बिलिंडा इज़ रियली थैंकफुल कि कस्टर्ड सेव्ड हर लाइफ. उसने एक बार भी ये चीज़ शो नहीं करी कि मैं तुझसे ज़्यादा ब्रेव हूँ, लेकिन इंस्टेड ऑफ हर सारे एनिमल्स जो हैं वो सब ये चीज़ बोल रहे हैं. Belinda still lives in her little white house with her little black kitten and her little grey mouse and her little yellow dog and her little red wagon and her really truly little pet dragon. At last the poet used the same lines again जो उन्होंने stanza 1 में यूज़ की थी, ये दिखाने के लिए कि अभी भी वो सब वैसे ही रहते हैं जैसे वो पहले रहते थे एक लिटिल वाइट हाउस में. अब वो ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि ये सब वही हुआ, लेकिन अब एंड में भी वही स्टोरी अभी भी है कि अभी भी वो लोग उस लिटिल वाइट हाउस में रहते हैं. वैसे ही एक ब्लैक किटन है, एक लिटिल ग्रे माउस है, एक येलो डॉग है और एक लिटिल रेड वैगन है. ऑल्सो उसके पास एक रियल लाइफ में लिटिल ड्रैगन भी है. द पोएट सेज दैट द लाइफ स्टार्टेड अगेन इन द सेम मैनर. इस सारे इंसिडेंट के बाद लाइफ वापस बैक टू वैसी ही चली गई. बट फ़र्क क्या आया, बिलिंडा इज, अब हमें ये बात पता है कि इसमें फ़र्क ये आया कि कस्टर्ड ने एक्चुअली अपनी ब्रेवरी दिखाई, लेकिन उसने उस चीज़ को शो ऑफ नहीं किया. वापस वो वैसा ही हो गया जैसा वो पहले था. ये हमें स्टैंजा 15 में दिखेगा. Belinda is as brave as a barrel full of bears, and Ink and Blink chase lions down the stairs. Mustard is as brave as a tiger in a rage, but Custard keeps crying for a nice safe cage.
वो यही कह रही है कि वैसे ही हैं सारे, वैसे ही ब्रेव है, लेकिन कस्टर्ड अभी भी वैसे ही रोता है कि मुझे अभी भी एक सेफ से केज में रहने की जगह दे दो। सो दिस एंड्स अ पोयम। अब इसके कुछ पोएटिक डिवाइसेस हैं जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए, सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। सबसे पहले बात करते हैं इसकी राइम स्कीम की। इसमें 15 स्टैंजाज हैं एज वी कैन सी, बट इसमें से 14 स्टैंजाज का राइम स्कीम सेम है, बट हमारे स्टैंजा 13 की राइम स्कीम थोड़ी सी अलग है। तो अगर हम देखें सारू की, तो हम स्टैंजा 15 ही देख लेते हैं। बेस स्टेयर्स, ए रेज एंड केज, बी तो इसकी राइम स्कीम है ए बी। अब आते हैं स्टैंजा 13 में। मस्टर्ड फ्लस्टर्ड, तो ए, blink and think, B, agree and me, C. तो स्टैंजा 13 की राइम स्कीम है ए एंड सी। लेकिन सारे बाकी सारे स्टैंजा 1 to 12 एंड 14-15 की सेम राइम स्कीम है, दैट इज ए एंड बी। ऑल्सो वी जस्ट डिस्कस्ड इट इन द स्टार्टिंग. The poem is in the form of a ballad, a long poem usually set to music. जो म्यूजिक के साथ प्ले करी जाती है, ये उस टाइप की पोएम है. इट्स अ बैलेड. The poet Nash uses this form to narrate the tale of Custard the Dragon and how he defeats a pirate. ये हमने establish कर लिया था. In this, basically poet is narrating the tale of Custard the Dragon and कैसे वो उसने pirate को defeat किया था. सिमिली का मैंने आपको यहाँ यूज़ बताया था कि देयर इज़ अ क्लियर कंपैरिजन ऑफ टू और मोर थिंग्स और पीपल विद द हेल्प ऑफ लाइक एंड एज. हमने ये चीज़ पढ़ी थी. एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ फिश, बैरल फुल ऑफ बेयर्स, वैसे ही यहाँ पर है. द फ्रेज इज शार्प एज मस्टर्ड, माउथ लाइक अ फायर प्लेस, एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बेयर्स, ब्रेव एज टाइगर इन अ केज, स्नॉटिंग लाइक एन इंजन. ये सारे के सारे हमारे सिमिलीज के एग्जाम्पल हैं. थ्रू दिस नैश क्रिएट्स ह्यूमरस डिस्क्रिप्शंस ऑफ द कैरेक्टर्स इन द पोएम. सिमिली का यूज़ नैश ने यहाँ पे इस तरह किया है कि वो पोएम के कैरेक्टर्स को डिस्क्राइब कर पाए, उनका डिस्क्रिप्शन दे पाए. लेट्स टॉकिंग अबाउट मेटाफर. Metaphor is a literary device used to represent a comparison without using the words like or as. It is somewhat like a simile, but यहाँ पर हम like और as का इस्तेमाल नहीं करते. चिमनी फॉर अ नोज, जैसे कि एग्जाम्पल है हमारा, हम लिख सकते थे चिमनी लाइक अ नोज, तब वो सिमिली हो जाता, या नोज लाइक अ चिमनी, तब वो हमारा सिमिली हो जाता. लेकिन हमने यूज़ किया चिमनी फॉर अ नोज, हमने डायरेक्ट कंपैरिजन कर दिया विदाउट यूजिंग लाइक और एज. एंड रिलियो ट्रूलियो डैगर्स ऑन हिज टोज. अब डैगर्स ऑन हिज टोज मतलब सही में थोड़ी उसके टोज में चाकू लगे हुए थे, बट यहाँ पर उसको सेम कंपैरिजन बनाने के लिए कि बिल्कुल चाकू जैसे ही थे, हमने यूज़ किया मेटाफर का डैगर्स ऑन हिज टोज. रेपिटेशन इस पोएम में न्यूमरस टाइम हमने देखी. द पोएट यूजेस रेपिटेशन एट वेरियस पॉइंट्स इन द पोएम टू क्रिएट rhythmical effect in the poem. He also uses it to build humor in the poem. इतनी बार उन्होंने repetition यूज़ करी है, रिपीट करा है वर्ड्स को, स्टैंजर्स को. 2 बार तो स्टैंजर्स ही रिपीट हो गए. फर्स्ट 2 स्टैंजर्स को हमने लास्ट के 2 स्टैंजर्स में देखा. फॉर एग्जाम्पल द वर्ड लिटिल हैज़ बिन रिपीटेड मल्टीपल टाइम्स इन द फर्स्ट 2 स्टैंजर्स. फर्स्ट 2 स्टैंजर्स को देखते हैं जो हमारे 14-15 भी यही हैं. जैसे कि शी लिव्स इन लिटिल वाइट हाउस, लिटिल ब्लैक किटन, लिटिल ग्रे माउस, लिटिल येलो डॉग, लिटिल रेड वैगन, लिटिल पेट ड्रैगन. उससे पहले देख लीजिए, सब में उनको यही चीज़ दिखेगी आपको कि लिटिल वर्ड का यूज़ रेपिटेशन बहुत है. दे हैव बीन यूज्ड अ लॉट इन द फर्स्ट 2 स्टैंजास. सो उसके अलावा वी कैन सी द वर्ड्स लाइक टिकल्ड, Belinda tickled him, she tickled him. Unmerciful, suddenly, pistol in his left hand, pistol in his right. तो हम देखते हैं कि इन सब का रिपीट बहुत हो रहा है एक रिदमिक इफेक्ट लाने के लिए. नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस इज onomatopoeia. This poetic device is used by the poet to describe the sounds produced with the help of the words. बेसिकली जब हम वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं एक साउंड को डिस्क्राइब करने के लिए,
साउंड डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स, जैसे स्नेक के लिए हम हिज यूज़ करते हैं, बैंग वर्ड यूज़ करते हैं, स्प्लैश यूज़ करते हैं पानी के लिए। सिमिलरली इस पोएम में वर्ड्स यूज़ किए गए हैं। वीक, जो कि एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ओनोमेटोपिया का, क्योंकि हम मिमिक कर रहे हैं कि जब रैट की आवाज़ आती है तो ऐसी ही आती है, वीक वीक आवाज़ आती है। म्याउच, कैट की साउंड के लिए हमने यूज़ किया है। क्लैटर, क्लैंग, जैंगलिंग, जितने भी वर्ड्स हमारे साउंड्स के लिए बने हैं वो सारे ओनोमोटोपिया का काम करते हैं हमारी पोम में। पोएटिक लाइसेंस, when a poet disregards the rules of a language and he uses poetic license in his works। मतलब जब भी पोएट लिटरेचर को या ग्रामर के या रूल्स ऑफ लैंग्वेज को साइड रख के अपनी पोम को लिखते हैं तो हम उसे पोएटिक लाइसेंस कहते हैं कि चलो ठीक है, हम तुम्हें पोएटिक लाइसेंस देते हैं। जैसे उन्होंने वर्ड्स यूज़ किए रिलियो, ट्रूलियो, वीक, दैट आर मेड अप वर्ड्स। बेसिकली ये सारे मेड अप वर्ड्स हैं, लेकिन हमें इन्हें ह्यूमर में पढ़ने में मज़ा आ रहा है। जैसे हम जब नॉर्मली अपने घर में हिंदी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, पानी वानी ले आओ, नाश्ता वाश्ता करा दो, शादी वादी में नहीं जाना, ऐसे शब्द। तो ये जो हमारे वर्ड्स थे, वानी, पानी वानी का वानी, नाश्ता वाश्ता, तो ये जो वाश्ता वर्ड है ये सारे हमारे पोएटिक लाइसेंस के अंडर आते हैं। सिमिलरली ही ऑल्सो चेंज विंडो टू विंडा टू मेंटेन द रिदम्स, टू मेंटेन द राइम स्कीम ऑफ दिस पोएम। बिलिंडा के साथ विंडा मैच करेगा, विंडो मैच नहीं करेगा, तो उन्होंने विंडो को विंडा कर दिया। आयरनी, आयरनी हो गया कि जब हम लोग दिखाते हैं कि कोई चीज़ कैसी है लेकिन उसकी उल्टी होती है, तो दैट इज़ द आयरनी। In this poem, has used irony to show that while Belinda and her pets considered themselves brave, they ultimately ran from the pirates। कि although वो पूरी पोएम में यही दिखाते रहते हैं नैश कि बेलिंडा और उसके जो बाकी पेट्स हैं ड्रैगन के अलावा वो बड़े ब्रेव हैं, लेकिन जब एक्चुअली सिचुएशन आती है तब वो भाग जाते हैं, डर जाते हैं। एंड दो कस्टर्ड क्राइड फॉर अ केज, कस्टर्ड हमेशा जो रोता रहता है केज के लिए, वो अपनी ब्रेवरी एक्चुअली दिखाता है। ऑल्दो पूरी पोएम में हमें यही बताया जाता है कि वो ब्रेव नहीं है। यूज ऑफ एलिट्रेशन बहुत यूज हुआ है इसमें। एलिट्रेशन होता है रेपिटेशन ऑफ द सेम साउंड, सेम साउंड का यूज इन द बिगिनिंग ऑफ क्लोजली प्लेस्ड वर्ड्स। जैसे लिव्ड, लिटिल एक साथ यूज हो रहे हैं। बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल वाइट हाउस, तो लिव्ड, लिटिल, ही हेल्ड, ये दोनों वर्ड्स। क्लैटर एंड क्लैंक, गल्प्ड, ग्रॉग, ये वर्ड्स, ये हमारे एलिट्रेशन के एग्जाम्पल्स हैं इसमें। जैसे कि ऑल्सो एक लाइन है इसमें, बिलिंडा इज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बेयर्स, तो ब्रेव, बैरल, बेयर्स, ये सारे हमारे एग्जाम्पल हैं एलिट्रेशन के इस पोएम में। मूविंग ऑन, अल्यूजन, ये हमारा लास्ट पोएटिक डिवाइस है इस पोएम में। दैट इज़ वाई दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पोएम, क्योंकि इसमें बहुत सारे पोएटिक डिवाइसेस हैं। एल्यूजन क्या होता है? An allusion is an indirect reference to a person, place, thing or idea. In this poem, the character makes fun of Custard by calling him Percival. Allusion होता है कि जब हम किसी का indirect reference लेते हैं, किसी person का या किसी place का या किसी चीज़ का या किसी idea का, लेकिन उस स्टोरी में उसका कोई वो नहीं है, रोल नहीं है। जैसे हम कई बार बोल नहीं देते, शाहरुख खान नहीं हो तुम, या ज़्यादा करीना कपूर बनने की कोशिश मत करो, ऐसी चीज़ें सुनी है ना, लेकिन ऑल्दो हमारी लाइफ में वो रियल में है नहीं। तो सिमिलरली यहाँ पे पर्सिवल की बात की गई थी। पर्सिवल जो था किंग आर्थर का नाइट था, जिसको हम जानते हैं कि वो भाग गया था, ऑल्दो वो नाइट था, एक बहुत बड़ा सिपाही माना जाता था, ही वॉज अ नाइट, लेकिन वो भाग गया था क्योंकि उसमें करेज नहीं था जब बैटल का समय आया। Thus the characters called Custard Percival because they consider him a coward। क्योंकि वो कस्टर्ड को कावर्ड बोलते थे कि वो डरपोक है, तो उन्होंने उसको पर्सिवल से कंपेयर किया। यहाँ पे उन्होंने अल्यूजन का इस्तेमाल किया। सो दैट इज़ द एंड ऑफ दिस पोम, कस्टर्ड द ड्रैगन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।